everyone. In previous classes, we discussed about the medical legal aspects of obstetrics and gynecology, and I hope it's clear. And we all should be and must be aware of all these points from history taking to making documents regarding doctor-patient activities. Discuss with the process related to the common gynecological problems, the role of obstetrician after the fertilization starts, and other than uh, product of fertilization, all that areas comes under the gynae that is related to the disorders. Mostly it is associated with the disorders with the menstruation, either fertilization, cases of infertility. There are anyhow correlated with the menstrual disorders or some anatomical defects. And other than that, also in the gynecological practice, all the processes are related with the menstrual disorders. So we'll discuss with the common problems. And here, most of you are with which field, like Ayurved, naturopath, or homeopath, or any other. So here, with these fields, we will discuss the conventional means to these diseases. So disorders of menstruation that comes under the anata or arthashaya. Amenorrhea is the absence of menstrual period in a woman of reproductive age. After 16, if there is no menstruation, physiological state most commonly during pregnancy and lactation, that is physiological amenorrhea. ये common है pregnancy के time और lactation के time पे menstrual cycle का ना होना. The latter also forming the basis of a form of contraception known as lactational amenorrhea method. कि साथ ही contraceptive method का भी रोल प्ले करते हैं. Outside the reproductive years, there is absence of menses during childhood and after menopause. तो amenorrhea की timings है, कुछ natural timings है, like during pregnancy, at the time of lactation, before menarche and after menopause. तो ये time पे menstrual cycle नहीं होना is normal, and other than that, lack of menstruation comes under the amenorrhea. तो इसकी क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे तो प्राइमरी इम्यूनोरिया ये शुरू से कभी हुआ ही नहीं. menstrual cycle never start. It may be the caused by developmental problems such as uterus ही नहीं है, anatomical problem हो गई, या failure of the ovary to receive or maintain excess, या ovary to excess को receive नहीं कर पा रही है या maintain नहीं कर पा रही है. It is defined as absence of secondary sexual characteristics by the age of 14 with no menarche or normal secondary sexual characteristics, but no menarche by the age of 16 years. तो secondary sexual characters जो है वो menarche के कुछ पहले आने लगते हैं. तो 14 years तक कोई भी secondary sexual characters नहीं है, and up to 16 years there is no menstrual cycle yet, then it comes under the primary amenorrhea. And about the secondary amenorrhea, menstrual cycles ceasing is often caused by the hormonal disturbances. There was normal menstrual cycle or menstruation previously, but uh, uh, from the interval there is no menstruation, and the most common cause is hormonal disturbances, and it may be from the, as we discussed in the menstrual cycle, HPO axis, that is hypothalamus, pituitary, and ovarian axis are related. तो HPO axis में कहीं भी प्रॉब्लम होने पे secondary amenorrhea फेस कर सकते हैं. Basically, it is related with the hypothalamus and pituitary gland from premature menopause or intrauterine scar formation. It is defined as absence of menses for 3 months in a woman with previously normal menstruation or 9 months for a woman in history of oligomenorrhea.
So if the patient or the woman is suffering from oligomenorrhea, then we will wait for the 9 months. And if there is no menstruation for the 9 months, then we'll say it as a secondary amenorrhea. And with the female with normal cycle, if there is no menstruation for 3 months, then it comes under the secondary amenorrhea. तो एमिनोरिया अगर प्राइमरी है तो कोई मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं और सेकेंडरी है तो उसको हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे। ऐसा नहीं कि कोई फीमेल आती है हमारी ओपीडी में 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए तो उसको हम डायग्नोसिस में एमिनोरिया लिखते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक उसकी ये हिस्ट्री नहीं आती है कि उसको प्रीवियसली नॉर्मल साइकिल थी और 3 मंथ से पीरियड्स नहीं आए तो हम उसको एज एन एमिनोरिया नहीं लिख सकते। और अगर प्रीवियस साइकिल में भी ओलिगोमेनोरिया की हिस्ट्री है एक्सटेंडेड इंटरवल्स तो हम उसको 9 मंथ तक वेट करेंगे फिर इमेनोरिया में डायग्नोस कर सकते हैं। So what are the causes and risk factors for that? Natural amenorrhea में during the normal course of life, women may experience amenorrhea, that is pregnancy, breastfeeding, menopause, and before menarche also. Contraceptive लेने पे भी amenorrhea हो सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव स्टॉप करने के बाद भी कुछ समय लग सकता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आने पे। बाकी हर कॉन्ट्रासेप्टिव से amenorrhea नहीं होता है। बेसिकली डिम्पा वगैरह जो एंड्रोक्सिप्रोजेस्टेरोन एसिस्टेट होते हैं या इंट्रायूटेरिन प्रोजेस्टेरोन डिवाइसेस जो होती हैं उनसे इम्यूनोरिया होने के चांसेस रहते हैं। और जो कंबाइंड पिल्स होते हैं उनसे इम्यूनोरिया जनरली नहीं होता है। एंड सम मेडिकेशंस आल्सो मे कॉज इम्यूनोरिया लाइक some medications to stop the periods and some antipsychotics, cancer chemotherapy, antidepressants, blood pressure की drugs, antihypertensive drugs या medications for the allergy that may cause amenorrhea. Or lifestyle factors are definitely contributing to amenorrhea these days. Sometimes lifestyle factors contribute to amenorrhea. For example, low body weight. Excessively low body weight, about 10% under normal weight, interrupts many hormonal functions in your body, potentially halting the ovulation. Women who have an eating disorder such as anorexia or bulimia often stop having periods because of these abnormal hormonal changes. तो वो आप लोगों ने बेसिकली जो रूरल एरियाज की फीमेल्स आती है तो उसमें वो कहते हैं ना शरीर में कुछ जान है ही नहीं तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वेट उसका 10% से भी नीचे है और एनोरेक्सिया है, खाना नहीं है, बुलिमिया, ये वेट लॉस के कारण जो विलिंगली डाइट नहीं लेते हैं इस बुलिमिया तो उसके कारण भी कई बार एमिनोरिया के फीचर्स दिख सकते हैं। एंड एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, ये सब आप चीजें अगर कोरिलेट करोगे तो ये वात डिसऑर्डर्स बेसिकली जो गायनी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं वात से ही इफेक्टेड रहते हैं। स्पेसिफिकली वात के कारण ही फ्लो होता भी है और वात की उद्गति या डिस्टर्बिंग गति के कारण ये फ्लो नहीं होता है। तो लो बॉडी वेट यहाँ पे वात बढ़ा, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज में भी आप जैसे देखेंगे तो जिनके पेशेंट्स में वात बढ़ा रहते हैं वहाँ मोशन का फ्लो अधोगति में प्रॉपर नहीं होता है। और उसी तरह से इसमें भी आर्तर की अधोगति चाहिए। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गए, वेट लॉस हो गया तो यहाँ पे वात बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस कारण से ये डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसका अवरोध कब से मिलकर अवरोध कर लेते हैं तो अवरोध के कारण फिर ये menstruation नहीं हो पाती। Women who participates in the activities that requires rigorous training such as ballet may find their menstrual cycles interrupted. Several factors combine to contribute to weight loss of periods in athletes, including low body weight, stress, and high energy expenditures. तो athletes में कई बार एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो एथलीट से रिलेटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड जो डॉक्टर्स रहते हैं तो उनको कई बार इस तरह से फेस करने पड़ते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी अगर स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं तो उनके जो भी डॉक्टर्स उधर अपॉइंटेड रहते हैं तो ये देखा गया इट इज वेरी कॉमन कि एथलीट्स में एक तो आपका सीवियर एक्सरसाइजेस के कारण आप कह लीजिए एक्टिविटीज उनकी ऐसी रहती हैं कि वो बात को बढ़ाने के फैक्टर्स रहते हैं। मतलब आप जिस भी पैथी से तो जो चीजें हैं मतलब diseases आर सेम, द वे ऑफ एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग एंड उस संप्राप्ति या उस पैथोजेनेसिस के अकॉर्डिंग आप जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट चीजें वही है, इंसान की बॉडी वही है। मैं मतलब हर क्लास में कहती हूँ
वो बॉडी वही है, आप उसको आयुर्वेद के सेंस में, एलोपैथ के सेंस में, होम्योपैथ के सेंस में, यूनानी के सेंस में, नेचुरोपैथ, मतलब वॉट एवर द थिंग, उसकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, बट थिंग्स आर सेम। तो इसको आप एज अ मॉडर्न यहाँ दिया है, उसको मैं आयुर्वेद नेचुरोपैथ से कोरिलेट करते हुए एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप जिस भी पैथी से आप अगर चीजें देखेंगे, ऑल द थिंग्स आर वेरी डिजाइंड वेरी साइंटिफिकली है। उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज होती थी या जो एक्सप्रेशन था, उसके अकॉर्डिंग ये भी कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक डेटा लेके ही जो टेक्स्ट में बातें लिखी हैं वैसा लिखी होगी। ये नहीं कि मतलब एक इंसान ने कुछ सोचा और बस उसको पन्नों पे लिख दिया और वो संहिता या कुछ बुक टेक्स्ट बन गई। बट आपका अगर कोई ऑथेंटिक बुक है जो सालों से चली आ रही है, आप उसको पढ़ोगे, उसको ट्रस्ट करोगे, चीजें समझोगे, तो थिंग्स आर सेम। सो here the factors combine to contribute the loss of periods in athletes की एक तो लो बॉडी फैट है, स्ट्रेस का भी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, और एनर्जी भी उनका एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होता है। तो एचपीयू एक्सेस से चीजें जुड़ी हैं, हाइपोथैलेमस में आपका स्ट्रेस है, वो जो है मेंटल लेवल पे चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। एक एनर्जी एक्सपेंडिचर मेटाबॉलिज्म का भी पूरा रोल होता ही है, जैसे आप अग्नि में भी देखें, जो भी पित्त के कारण ही आर्टरी स्राव होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका बॉडी एक्टिविटीज में ज्यादा लग रहा है, तो इस तरफ कम हो पा रहा है, और बॉडी फैट भी फीमेल का कम रहता है, तो इन सब कारण से इम्यूनोरिया तेज आ जाती है कई बार। And stress, mental stress can temporarily alter the functioning of your hypothalamus, an area of your brain that controls the hormone that regulate your menstrual cycle. Ovulation and menstruation may stop as a result, and regular menstrual periods usually resume after your stress decreases. तो stress का वही hypothalamus से function कोरिलेट करते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। और नशे में देखा होगा आपने, आतश शहर में नशे की थेरेपी, तो ये आप उस तरह से ही कोरिलेट कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस को की एक्टिविटी को जनरेट करके, मतलब हार्मोनल बैलेंस आपका बनाने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस, many types of medicinal problems can cause hormonal imbalance, including polycystic ovarian syndrome. That is the most common these days. PCOS cause relatively high and sustained level of hormones rather than fluctuating levels seen in the normal menstrual cycle. तो नॉर्मल menstrual cycle में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर ध्यान नहीं था प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स पे या स्लाइड्स में जाकर देख सकते हैं कि केस में कैसे कैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता है, फिर एस्ट्रोजन बढ़ते हैं, फिर वो पीक आती है, ओव्यूलेशन होता है, एंड बिफोर दैट जस्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच भी आना शुरू होता है, एंड एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सारे हार्मोन्स हाई लेवल पे होते हैं, एंड ग्रेजुअली ओव्यूलेशन के बाद एफएसएच एंड एस्ट्रोजन लेवल फॉल डाउन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन का रोल रहता है गैप फॉलिकल बनने में। इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो पिक्चर आपके अगर है माइंड में तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो प्लीज गो टू द प्रीवियस क्लासेस। अगर ये स्लाइड आपको समझनी है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट। तो सिजेशन होता है, और फिर अगर प्रेगनेंसी का फीमेल कंसीव कर जाती है तो वो प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो luteinizing hormone and progesterone also declines, and menstruation phase, bleeding phase of menstruation is there. But PCOS में ये fluctuation of hormone is not there, sustained level of hormones is there. Thyroid malfunction may be, and overactive thyroid gland or underactive thyroid gland, that is hyperthyroidism and hypothyroidism respectively, can cause menstrual irregularities including amenorrhea. तो ये अग्नि का कॉन्सेप्ट हमारी पैथी में है। तो अग्नि डिस्टर्बेंस होंगे तो सारे बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, इंक्लूडिंग menstruation. Pituitary tumor, a non-cancerous benign tumor in pituitary gland, can interfere with the hormonal regulations in menstruation. ये कई बार रीजन होते हैं कि आप लोकल मेडिसिन, आप जो यूटेरिन टॉनिक, ओव्यूलेटरी फंक्शन ठीक करने के लिए हार्मोन्स या कुछ भी चीजें आप देते जा रहे हो, बट उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए अगर पिट्यूटरी कैंसर कैंसरस है, पहले तो आपको मेलिग्नेंसी और ये सब चीजें मतलब पूरा ध्यान देना ना, पेशेंट इज प्रायोरिटी।
वो सेफ जोन में है, तो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, जो एंटी कैंसरस एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स देके और नस से थेरेपी यूज करते हुए उसको रिकवर किया जा सकता है। और लोकल भी शिरोधारा एंड मेनी थेरेपीज आर देयर, तो उसको सिस्टमिक वे में लेते हुए प्लस ओरल ड्रग्स एंड उसकी भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम एक्टिविटीज इंक्लूड करते हुए आप इस एरिया पे वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको स्कैनिंग करानी होगी, स्कैनिंग के बाद ही आपका डायग्नोसिस बनेगा एंड यू विल गो अकॉर्डिंगली। और कई बार ये होता है कि हार्मोन लेवल्स देखते भी कि पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं उसके लेवल्स काफी रेज्ड रहते हैं या कम रहते हैं उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप डायग्नोस कर सकते हैं। एंड प्रीमेच्योर मेनोपॉज, नॉर्मल एज इज 50 years एज पर एलोपैथ ऑल्सो। और जो पुराने टेक्स्ट हैं उनमें भी आप देखेंगे, एंशियंट टेक्स्ट में भी, तो 50 years का ही रेफरेंस है। बट फॉर सम women द ओवेरियन सप्लाई ऑफ एग diminishes बिफोर द एज ऑफ 40 एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। ये हम लोगों ने ओवेरियन रिजर्व की क्लास एक दिन देखी थी, तो उसमें यही देखा था कि ग्रेजुअली आफ्टर 30-35 एज ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है। और कुछ फीमेल्स में वो बहुत ही स्पीड अप हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली दीज डेज वो एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स टेस्ट होते हैं, या उसकी दो तीन जो कैरेक्टर्स थे ओविलेटरी फंक्शंस देखते हुए उसको डायग्नोस किया जाता है। तो इस सब रीजन से प्रीमेच्योर मेनोपॉज की कंडीशन भी इम्यूनोरिया को कॉज करा सकते हैं। एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद द सेक्सुअल ऑर्गन्स themselves also can cause amenorrhea. For example, uterine scarring, यूट्रस में स्कार आ गया, Asherman syndrome भी एक कंडीशन है in which scar tissue build up in the lining of the uterus and can sometimes occur after dilatation and curettage, cesarean section and treatment of uterine fibroids. तो कुछ कंडीशंस है होती हैं जहाँ की टीएनसी की जरूरत पड़ गई, या यूटेरिन फाइब्रॉइड्स हो गए, सिजेरियन सेक्शन के टाइम वो एरिया यूटेरिन लाइनिंग में स्कैरिंग हो जाती है, कि वहाँ की सप्लाई वगैरह डैमेज होते हुए यूटेरिन स्कैरिंग प्रिवेंट्स द नॉर्मल बिल्डअप एंड शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग, की लाइनिंग थिन हो गई और उस कारण से भी एमिनोरिया की तरफ कंडीशन चली गई। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो ऑर्गन ही नहीं है समटाइम्स, ये प्राइमरी एमिनोरिया में जाएगा। समटाइम्स प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग fetal development that lead to the girl being born with some major part of her reproductive system, such as her uterus, cervix, or vagina, because her reproductive system didn't develop normally, she can't have menstrual cycles. तो उसमें वो ऑर्गन्स ही नहीं है। और आयुर्वेद में भी ये फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए फ्रॉम menstrual disorder up to the infertility या मिसकैरेजेस की भी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो वो एक सेट ऑफ एरिया डिजाइंड है के थ्रू आप जा सकते हैं, जो भी आयुर्वेद से है। And structural abnormality of the vagina and obstruction of the vagina may prevent visible menstrual bleeding, कि इंटरनली वो साइकिल चल रही है बट ऑब्स्ट्रक्शन वेजाइना में है, तो वो ब्लीडिंग बाहर से नहीं दिख रही है। A membrane or wall may be present in the vagina that blocks the outflow of blood from the uterus and cervix. ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसको पूरे सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकिल प्रॉपर चल रही है, but due to obstruction या abnormality in the vagina तो ब्लीडिंग दिख नहीं रही है। So what are the signs and symptoms? The main sign of amenorrhea is absence of menstrual period. The most important, and you can the only sign is absence of menstrual period is amenorrhea. And depending on the cause of the amenorrhea, you might experience other signs and symptoms. उसके कारण क्या है, या साथ में उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, या और क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग साइंस एंड सिम्टम्स एडिशनल हो सकते हैं। बट इट इज द वन ऑफ द सिंगल पॉइंट, और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ menstruation is amenorrhea. And symptoms included are like discharge from nipples, hair loss, headache, vision change, excessive facial hairs, pelvic pain, acne, vaginal dryness, and night sweats.
तो उसके साथ साथ इन सिम्टम्स से हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि साथ में और कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है, या उसकी एग्जैक्टली पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस किस तरह से बना सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हिस्ट्री सबसे पहले लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है कि जैसे हमने पढ़ा कि लीन एंड थिन पेशेंट्स हैं तो उनके में क्या कारण हो सकते हैं, और अगर पीसीओडी है तो उसमें कई बार ओबीस पेशेंट्स हो जाते हैं। एंड ब्लड टेस्ट मे बी परफॉर्म टू डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। हम हार्मोन लेवल्स देख लेंगे, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, तो फिर हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि हाइपर हाइपोथायरायडिज्म या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड एफएसएच, एलएच लेवल डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड द ओवरीज से हम लोग एस्ट्रोजन के लेवल्स देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड स्कैनिंग लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द pelvis may be performed to assess the abnormalities of genital tract or to look for the polycystic ovaries. तो ये जो दो रीजंस हो सकते हैं कि जेनिटल ट्रैक्ट की कुछ abnormality है, या ओवरीज में कई बार कई सारे सिस्ट बन जाते हैं कि वो नॉर्मल जो ओव्यूलेशन नहीं होता है वो डेवलप होते होते फिर सिस्ट फॉर्म में ही ओव्यूलेशन वहां रुक जाता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होता तो आगे की साइकिल भी कंटिन्यू नहीं होती है। सो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। एंड सीटी स्कैन और एमआरआईज ऑफ हेड मे बी परफॉर्म टू एक्सक्लूड द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक कॉजेज ऑफ इम्यूनोरी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी कैंसर भी कई बार हो सकता है, या हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कॉजेज भी है, तो ये सीटी स्कैन या एमआरआई से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। इफ द अबव टेस्ट आर इनकॉन्क्लूसिव, एडिशनल टेस्ट में बी परफॉर्म्ड। कि इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकला तो फिर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल्स देख सकते हैं, हिस्टेरोसल्फिंजोग्राम। कई बार क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस आपके जेनाइटल एरिया तक चला जाता है, वहां का ही रहता है, तो हिस्टेरोसल्फिंजोग्राम से यूट्रस देख के हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी और भी रीजंस हो सकते हैं, एनी ऑफ द ब्लॉकेज या स्कैरिंग जैसे बोला गया, तो इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं करने के लिए, डायग्नोसिस प्रॉपर बनाने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट? तो डोपामिन एगोनिस्ट सच एज ब्रोमोक्रिप्टिन और परगोलाइड आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया। अगर प्रोलेक्टिन ज्यादा है तो उसके लिए डोपामिन एगोनिस्ट देने होंगे, लाइक परगोलाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया के केसेस में इन मोस्ट वुमेन ट्रीटमेंट विद डोपामिन एगोनिस्ट मेडिकेशन रिस्टोर्स नॉर्मल ओवेरियन एंडोक्राइन फंक्शंस एंड ओव्यूलेशन। तो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया की कंडीशन भी कई बार दिख जाती है, तो उसमें अगर डोपामिन एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन या परगोलाइड यूज करने के बाद नॉर्मल ओवेरियन एंडोक्राइन फंक्शन रिकवर हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन भी प्रॉपर होने लगता है। या HRTs या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज कंसिस्टिंग ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन इन whom estrogen deficiency remains because ovarian functions cannot be restored। तो हम पर ओरल हॉर्मोन्स भी देते हैं कई बार, या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी बेसिकली एस्ट्रोजन देके ओव्यूलेशन कराते हैं। या इनफर्टिलिटी के केसेस में भी जो ट्रीटमेंट में ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन 7 8 डेज से देते हैं, और उससे ओव्यूलेशन में हेल्प मिलता है। ओव्यूलेशन के बाद वो फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, और अगर मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंसेस हैं तो भी एस्ट्रोजन लेके, और इफ द कॉज इज हार्मोन्स रिलेटेड एस्ट्रोजन, तो रिकरेंस हो जाता है। एंड the PCOS also many times. And metformins, these are the glucophages. Is drug that has been successfully used in women with polycystic ovarian syndrome to induce ovulation. So ये पूरा ही मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है पीसीओएस बेसिकली, तो इसमें शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब रहते हैं, और ये ग्लूकोफेज है मेटफॉर्मिन इसको एंगल करता है। तो वहां से अगर प्रोसेस सही होते होते आपका आगे सिस्टमिक इम्बैलेंस जो है वो खत्म होते हुए आपका मेंस्ट्रुएशन भी रिकरेंस हो जाता है। In some cases, OCPs, that is oral contraceptives, may be prescribed to restore the menstrual cycle and to provide estrogen replacement to women with amenorrhea who do not wish to become pregnant.
तो जिनको साइकिल भी नॉर्मल चाहिए और प्रेग्नेंट भी नहीं होना है, तो ओसीपीज आर ड्रग ऑफ चॉइस, यू कैन से, in the menstrual disturbances. And before administering oral contraceptives, withdrawal bleeding is induced with an injection of progesterone or oral administration of 5 to 10 mg of medroxyprogesterone. कि आपके पास पेशेंट आई इम्यूनोरिया की एंड इज शी इज नॉट विलिंग टू कंसीव, या वो अनमेरिड है, तो आप पहले स्कैनिंग करा लोगे, अल्ट्रासाउंड करा दोगे कि कोई प्रेगनेंसी या कोई और फैक्टर नहीं है, और हॉर्मोन्स लेवल्स भी देख लोगे। अगर वहां पे कुछ डिस्टरबेंस आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग से या ब्लड रिपोर्ट्स की फाइंडिंग से होती है, मिलती हैं, तो ओसीपीज आप सेलेक्ट करके पहले तो डायरेक्टली ओसीपीज स्टार्ट नहीं करनी है, वो फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करना है, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पीस देगा तो फ्रॉम द फर्स्ट डे। बेसिकली कंबाइंड ही देना सही रहता है। तो सबसे पहले आप उसको, जब 4 महीने से ब्लीडिंग ही भी नहीं हुई है, तो ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन देना होता है, तो आप उसको विड्रॉल ब्लीडिंग करोगे। विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए प्रोजेस्टेरॉन आप उस फीमेल को दोगे, चाहे तो आप उसको ओरल भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं। सो ड्रग्स 8 to 10 डेज में उससे फिर वो प्रोजेस्टेरॉन लेगी। और जैसे कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल पहले पीक पे जाते हैं, फिर कम होते हैं, और फिर ब्लीडिंग होती है। तो नॉर्मली बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरॉन में कुछ डिस्टरबेंस है, तो एक बार आपको उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी लाइक देना है। तो आप नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन दोगे, फिर उसके बाद वो लेवल्स कम आएंगे, तो जैसे नॉर्मल साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ के घटता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एक्सटर्नली देके बढ़ के घटेगा, तो फिर बॉडी को वो साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन घट गया, अब ब्लीडिंग करानी है। और उस प्रोजेस्टेरॉन से थोड़ी सी एंडोमेट्रियल लाइनिंग वगैरह जैसा रहता है, जो उसका रोल रहता है, वो भी कहीं ना कहीं होगा। तो अगर बॉडी नेचुरली सिंथेसाइज नहीं कर रही, तो आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन देके उसका काम करवाना है, और फिर इसके बाद विड्रॉल ब्लीडिंग करवानी है। और विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद फिर सेकेंड टू थर्ड डे से आप ओसीपी पे दोगे। और ओसीपी में जैसा की रहता है कि पहले एस्ट्रोजन का रोल और फिर प्रोजेस्टेरॉन का रोल और नॉर्मल फंक्शंस चलते हैं, और फिर 21 डेज ओसीपीज आप दोगे, जैसे कि 21 डेज में अप्रोक्सीमेटली हॉर्मोन्स आते हैं, वैसा सारे रोल होंगे, और फिर हॉर्मोन्स के लेवल्स कम होंगे, तो फिर विड्रॉल ब्लीडिंग, मतलब उसके बाद भी स्टॉप करने के बाद 5 to 10 डेज में ब्लीडिंग होगी, और फिर नेक्स्ट साइकिल में सेकेंड टू थर्ड डे से फिर ओसीपीज देनी है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ओसीपीज का रोल है। और 3 साइकिल्स एटलीस्ट ये चलाना होता है। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हार्मोन लेवल देख लें, या फिर स्टॉप करके देखेंगे, और साइकिल रिकरेंस अगर नॉर्मल हो जाती है देन इट्स गुड, और नहीं होती तो फिर ओसीपी कंटिन्यू करके या दूसरे प्रोसेस से हम, या और कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, उसको डायग्नोस करके फिर आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। सम पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स में रिक्वायर सर्जरी एंड इन सम केसेस रेडिएशन थेरेपी। तो कई बार पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स में सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है, रेडिएशन थेरेपी की भी। एंड वुमेन विद इंट्रायूटेरिन एडिशंस रिक्वायर डिसोल्यूशन ऑफ स्कार टिश्यू, और एडिशंस हैं तो उसको डिसोल्यूशन कराना होता है स्कार टिश्यू का। तो ये जैसा कि हम लोगों ने एस्ट्रोजन एंड हॉर्मोन्स ओसीपीज की बात की है, तो इसको आपके पैथी में जो भी हर्बल ड्रग्स कई सारे होते हैं, लाइक शतावरी, गुड सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स, ये सब से भी आपके हार्मोनल बैलेंस बनते हैं। या फिर इसके पहले पीसीओएस से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, या सिस्टमिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो है, थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग अपना योग एंड प्राणायाम यूज करते हुए, जो आपकी पिट्यूटरी से रिलेटेड, मतलब कैसा है पहले आपको डायग्नोस करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इस पैथी जो एलोपैथ से जो ट्रीटमेंट चलते आ रहे हैं, वो एक कॉमन प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस बनी हुई है। बट अदर पैथीज में ये एक्सपीरियंस बेस पे लोग चलते हैं। हाँ, ये भी है कि पर्सन टू पर्सन भी ट्रीटमेंट होता है, एक एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं बनी है। बट आपके ट्रीटमेंट प्रोसीजर में या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, वहां पे आप केसेस देखते देखते ये है कि आप नेचुरल वे में भी उन चीजों को ठीक कर सकते हो। और अगर नहीं होता है, तो आप फॉर द टाइम भी ये हॉर्मोन्स की हेल्प लेके फिर आगे उसको इन नेचुरल मीन से रिकवर कर सकते हैं। एंड शताब्दी इज गुड सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन कैन से, एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम
ये अक्सर देखने को मिल जाता है फीमेल्स में। कई बार तो इसकी डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती है, जब फीमेल को लगता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। जो क्योंकि पीरियड से रिलेटेड लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन या उसमें बढ़ना, ये सब चीजें होती हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बट पीएमएस में तो कई बार दे डोंट इवन कंसल्ट टू एनी गायनेकोलॉजिस्ट। So premenstrual syndrome refers to physical and emotional symptoms that occurs in the 1 or 2 weeks before a woman's periods. And symptoms often vary from between women and resolve around the start of the bleeding. तो menstruation phase या bleeding phase के पहले की स्टेज है ये। ब्लीडिंग जब होती है तो वो पीरियड की ये पीएमएस की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, और उससे 1 से 2 हफ्ते पहले, तो यू कैन से बिटवीन द ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन के टाइम बीच का ये पीरियड है। और इस पीरियड में कई बार फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड्स एक्ने, tenderness in breast, bloating, feeling tired, irritability, mood changes. Often symptoms are present for around 6 days. And premenstrual dysphoric disorders is a more severe form of PMS. तो PMS में तो मीन्स फीमेल को थोड़ा टेंडरनेस फील होगी ब्रेस्ट में, थोड़े पिंपल्स वगैरह निकल आएंगे, भारीपन सा लगेगा, टायर्डनेस लगेगी, थोड़ी इरिटेटेड सा मूड चेंज रहेगा कि अ, चिड़चिड़ापन, और कभी डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग भी। बट यही सिम्टम्स काफी हद तक बढ़ के प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, दैट इज पीएमडीडी, के भी रूप ले सकते हैं। और इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स काफी ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पीएमएस। And what are the causes and risk factors? Exactly what causes PMS is unknown, but several factors may contribute to the condition। की इसका exactly रूट कॉज तो नहीं पता है, बट कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक कि इतना फ्लक्चुएशन होते हैं हॉर्मोन्स लेवल्स में फीमेल्स की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि cyclical changes in hormones, signs and symptoms of premenstrual syndrome changes with the hormonal fluctuations and disappear with pregnancy and menopause। कि ये फ्लक्चुएशन के कारण ही बॉडी इज साइकोसोमैटिक। तो अगर एक एरिया में इतने हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रही है तो मतलब मोस्टली तो बॉडी कोप अप कर जाती है, बट मेनी ऑफ द टाइम और भी कोई सिम्टम्स हो गए, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, वो तो वो उसको और एग्रावेट कर देता है इस फ्लक्चुएशंस को। या कभी शॉर्ट साइकिल होगी, ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगे, हार्मोनल लेवल्स में ज्यादा चेंजेस आने लगे, तो होते हैं, और कुछ में हमेशा ही होते हैं। और ये जो कंडीशन है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ये इस तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, प्रोजेस्टेरॉन एक लेवल में धीरे 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 बढ़ता है। ये सिस्टमिक रेगुलर हर महीने के फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। या मेनोपॉज के बाद तो फिर रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। एक ये कॉज सस्पेक्ट किया जाता है, एंड केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन, दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ सेरोटोनिन, a brain chemical and neurotransmitter that is thought to play a crucial role in mood states that could trigger PMS symptoms। की बाकी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ सेरोटोनिन में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि ये देखिए हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी होते हुए ओवेरियन सिग्नल्स जा रहे हैं, तो हर लेवल पे हो रहे हैं, तो उसके जो सीक्रेशन हाइपोथैलेमस को करना है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स को तो वो रिलीज कर रहा है, साथ में उसके अदर एसोसिएटेड भी हॉर्मोन्स अगर कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे, लाइक सेरोटोनिन का भी रोल देखा गया है, तो ये पीएमएस सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन may contribute to premenstrual depressions as well as fatigue, food cravings and sleep problems। and food cravings में स्पेशली स्वीट के लिए क्रेविंग ज्यादा होती है, डिप्रेशन होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्लिनिकली कैसे मैनिफेस्ट करेगी फीमेल? उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो इमोशनल और बिहेवियरल होंगे, जैसे कि उसको कुछ टेंशन या एंजाइटी सी रहेगी, मूड डिप्रेस सा चलेगा, मतलब रोने का इच्छा होगी, क्राइंग स्पेल्स या रोने लगेगी, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी और एंगर, ईटिंग हैबिट्स बढ़ जाएगी, एपेटाइट जनरली बढ़ ही जाती है, एंड फूड क्रेविंग्स स्पेशली फॉर द स्वीट, इंसोम्निया या ट्रबल इन फॉलिंग asleep, सोशल विड्रॉल में किसी से बात बात करने का मन नहीं करेगा, एंड कंसंट्रेशन किसी भी काम में मन भी नहीं लगेगा। And what are the physical signs and symptoms? Joint and or muscle pains, headache, fatigue, weight gain related to the fluid retention, abdominal bloatings। और ये बेसिकली पीएमएस जितना भी इस पे कुछ काम हुआ है, तो ये एस्ट्रोजन बढ़ने के कहीं ना कहीं साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं।
तो थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलेटेड जो डाइट या फैक्टर्स हैं उस समय उसको रिड्यूस करके देखेंगे तो इट विल हेल्प. Abdominal bloating, breast tenderness, acne, constipation, diarrhea, these are the common symptoms and signs of PMS. और डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? देयर इज नो यूनिक फिजिकल फाइंडिंग और लैब टेस्ट टू पॉजिटिवली डायग्नोज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. तो अभी तक कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका नहीं बना है. मैनेजमेंट में एंटी डिप्रेसेंट्स, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं. सेलेक्टिव सीरोटोनिन reuptake inhibitors which includes fluoxetine, paroxetine, sertraline या other antipsychotic या antidepressants have been successful in reducing mood symptoms. SSRIs are the first line of treatment for severe PMS और PMDD. तो अगर ये सीवियर PMS या PMDD में चला गया है तो फिर